Hello students, here we are once again with JPRC Digital Study. Students, today we are going to learn about the poem 3rd of class 10th, The Village Song, written by Sarojini Naidu, known writer and politician of India. She was born on 13 February 1879 at Hyderabad and was died on 2nd March 1949 at Lucknow. Her father name was Aghornath Chattopadhyay and mother was Varta Sundari Devi. She had married with Govind Raju Naidu. Education at Chennai, London and Cambridge. She got early education at Chennai and after that went to London and Cambridge to get his higher class education. She had written many poems and some of them are the Golden Threshold, Palanki and Bearers, The Word of the Time, Speeches and Writings, The Broken Wings, and In the Bazaars of Hyderabad. She had described the rural concepts of the areas in her poems. She became the first governor of Uttar Pradesh after the independence. She was very good poetess and was declared as the Nightingale of India. She has got the name of Nightingale of India. उन्हें भारत कोकिला के नाम से संबोधित किया जाता है. The prescribed lesson, the village song, is based on a speech to a mother to her girl. इस कविता में जो विलेज सॉन्ग है इसमें एक माँ और उसकी बेटी के बीच संवाद को बताया गया है कि किस तरह से वह अपनी बेटी से कुछ पक्ष रखती है कि उसे रुकना चाहिए कि कहीं जाना चाहिए और उसकी बेटी उसको जवाब देती है. लेट्स सी आवर टेक्स्ट बुक एंड नो अबाउट द पोएम. हनी चाइल्ड whither are you going? Would you cast your jewels all the breezes blowing? Would you leave the mother? One golden grain has fed you. Would you grieve the lover who is riding forth to wedding? In this very lines, the poetess wants to describe that the mother was saying to her girl, her daughter. इस स्टेंजा में पोएटेस सरोजिनी नायडू जो है बताती हैं कि एक माँ है जो अपनी बेटी के साथ बात कर रही है और कहती है हनी चाइल्ड whither are you going? whither means the where. कहती हैं कि माँ कहती है कि ऐ प्यारी बच्ची, हनी चाइल्ड मीन्स प्यारी बच्ची, where are you going? कहाँ जा रही हो तुम? Would you cast your jewels? Here we see the helping verb is in the beginning of the sentence, means question कर रही है. Would you cast your jewels all to the breezes blowing? breezes blowing means blowing wind, बहती हुई हवा में. इस सुहावनी बहती हवा में would you cast your jewels? क्या तुम अपने गहने उतार कर फेंक देना चाहती हो? क्या तुम उतार देना चाहती हो? Would you leave the mother? क्या तुम अपनी उस माँ को छोड़कर जाना चाहती हो? Who on golden grains had fed you? golden grain means सुनहरे रंग के दानों से fed you means पोषित किया, means सुनहरे रंग के दाने means गेहूं के दाने. कहने का मतलब है जो माँ कह रही है कि बेटी क्या तुम मुझे अपनी माँ को भी छोड़कर जाना चाहती हो जिसने तुम्हारा भरण पोषण किया, तुम्हारा पालन पोषण किया है. Would you grieve the lover who is riding forth to wed you? और क्या तुम अपने उस प्रेमी के दुख का कारण बनोगी? ग्रीव मीन्स दुख शोकाकुल ना. क्या तुम अपने प्रेमी के दुख का कारण बनोगी? Who is riding forth to wed you? riding forth means घोड़सवारी करना, जो कि घोड़े पर सवार होकर के तुमसे विवाह करने के लिए आ रहा है. कैसा अवसर है? माँ अपनी बेटी से कहती है कि क्या बेटी इस समय तुम चली जाओ, मैंने तुम्हारा भरण पोषण किया और तुम अपने गहने उतार कर कहीं जाना चाहती हो. क्या तुम ऐसा करके अपने उस प्रेमी को दुखी नहीं करोगी जो घोड़े पर सवार होकर के तुमसे विवाह करने आ रहा है? इस पर अगले स्टेंजा में उस बच्ची का क्या जवाब अपनी माँ से होता है उसको जानेंगे. मदर माइंड टू द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग.
स्टैंड, मैं कहाँ जा रही हूँ? उस घने जंगल की ओर जा रही हूँ। Whereupon the champa buds are flowing. Champa buds means on the trees of champa, shrub of champa. जहाँ चंपा के फूलों के, चंपा के पेड़ों पर चंपा बड्स आर ब्लोइंग, चंपा की कलियां खिली हुई हैं। अरे जिस तरह से गुलाब पर गुलाब खिलेगा, गुड़हल पर गुड़हल खिलेगा, उसी तरह से चंपा पर चंपा भी तो खिलेगा। तो उसने कहा माँ मैं उस सघन वन में जा रही हूँ, उस घने जंगल में जा रही हूँ जहाँ पर चंपा के पेड़ों पर चंपा की कलियां खिली हुई है। टू द कोयल हांटेड रिवर्स इज़ल्स वेयर लोटस लिलीज ग्लिशन, और उसी वन में जा रही हूँ जहाँ लोटस लिलीज ग्लिशन, जहाँ पर कमल और कुमुदनी, ग्लिशन मीन्स चमकती रहती हैं, विकसित होती रहती हैं, और उनको देख करके कोयल हांटेड रिवर्स इज़ल्स, रिवर्स इज़ल्स मीन्स नदियों के टापू पर, यानी नदियों के बीच में जो स्पेस है उस पर बैठ करके कोयल मधुर गीत गा रही है। मैं ऐसे जंगल में जाना चाहती हूँ। द वॉइसेस ऑफ द फेरी folk आर कॉलिंग मी, ओ लिसन, और वो कहती हैं कि सुनो, किस तरह से मुझे वो जादुई आवाजें मुझे वहाँ पर बुला रही हैं, उनका आकर्षण मुझे बुला रहा है, इसलिए मैं उस जंगल को जाना चाहती हूँ। हनी चाइल्ड, अब माँ कह रही है जो अपनी बेटी को मना करना चाहती है वहां जाने के लिए, हनी चाइल्ड द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लीजर। वो कहती है कि ऐ मेरी बच्ची, ऐ प्यारी बच्ची, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लीजर, यह दुनिया कैसी, यह दुनिया खुशियों से भरी हुई है। ऑफ ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स एंड सैंडल सेंटेड लेजर, किस चीज से भरी हुई? ब्राइडल सॉन्ग मीन्स विवाह गीतों से, विवाह गीतों से, और क्रेडल सॉन्ग इस विदाई गीतों से। यह दुनिया विदाई गीतों और विवाह गीतों की सुंदरताओं से भरी पड़ी है। एंड सैंडल सेंटेड लेजर, और जिसमें चंदन जैसी खुशबू का आराम है। सैंडल सेंटेड मीन्स सैंडल जैसी खुशबू का, लेजर मीन्स खाली समय अवसर है। योर ब्राइडल रॉब्स आर इन द लूम, और जो तुम्हारे ब्राइडल रॉब है दुल्हन के वस्त्र, यानी घाघरे जो बन रहे हैं, आर इन द लूम, कहाँ पर हैं? करघे पर हैं, यानी अभी बुनाई के कार्य में उस पर लगे हुए हैं लोग, अभी वह बुनाई के कार्य में प्रगति पर हैं। सिल्वर एंड सैफरन ग्लोइंग, और किस तरह से बना है, उनकी चमक कैसी है? चांदी और केसरिया रंग की है। योर ब्राइडल केक्स आर ऑन द हेर्थ मीन्स चूल्हा, और तुम्हारे जो ब्राइडल केक्स मीन्स जो विवाह से संबंधित मिठाइयाँ वह कहाँ बन रही हैं? चूल्हे पर रखी गई हैं। वो वेदर आर यू गोइंग, और ऐसे अवसर पर तुम कहाँ जा रही हो? अब लड़की कहती है द ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स हैव कंडेंस ऑफ शॉरो। वो कहती है कि ऐ मेरी माँ, द ब्राइडल सॉन्ग्स हैव एंड क्रेडल सॉन्ग्स हैव कंडेंस ऑफ शॉरो। वो कहती है दुख का कारण है, कंडेंस ऑफ शॉरो में दुख का कारण है। क्या है वह कारण? वैवाहिक गीत और विदाई गीत। किसका कारण है? दुख का कारण है। द लाटर ऑफ द सन टुडे, द विंड ऑफ डेथ टुमारो, क्योंकि जो आज का मुस्कुराता हुआ सूर्य है वह कल के मृत्यु की हवा का कारण बन सकता है। मीन्स जो आज हमको अच्छा लग रहा है वो आने वाले समय में अच्छा नहीं हो सकता है। पर स्वीटर साउंड द फॉरेस्ट नोज वेयर फॉरेस्ट स्ट्रीम्स आर फॉलिंग, और मुझे अपने इस विवाह से ज़्यादा महत्वपूर्ण, ज़्यादा रुचिकर क्या लग रहा है? स्वीटर साउंड द फॉरेस्ट नोज, वह मधुर संगीत जो मुझे उस वन में मिलेगा वो मुझे विवाह की खुशियों से ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एंड फॉरेस्ट स्ट्रीम्स आर फॉलिंग, जहाँ पर जंगल में स्ट्रीम मीन्स झरने आर फॉलिंग गिर रहे हैं, जहाँ पर झरने गिरते हैं और उनका कलकल स्वर जो जंगल में गूंजता है वह मुझे मेरे विवाह के गीतों से ज़्यादा रुचिकर लग रहा है। ओ मदर माइन आई कैन नॉट स्टे, सो सी डिक्लेयर, इसलिए वह कहती है कि ऐ मेरी माँ, हे मेरी प्यारी माँ, इसलिए मैं यहाँ रुकना नहीं चाहती हूँ। द फेरी फोक आर कॉलिंग, क्योंकि मुझे वही मधुर संगीत, जैसे परियों की ओर से अच्छी आवाज़ें आती हैं, परियों की कहानियाँ सुन के हमें रुचि मिलती है, उसी तरह से जो यह झरनों का मधुर संगीत है, वह झरनों का यह लुभावना और जादू रूपी स्वर है, यह मुझे आकर्षित कर रहा है, इसलिए मैं अब यहाँ पर नहीं रुक सकती।
Students, read this poem with the help of this video. We will meet with the next chapter in the next video. Till then, thanks.